Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Prime Minister Narendra Modi asserts that India is the world's biggest talent factory and bright spot in global economy. Domestic indices close almost flat. Sensex finishes near the 62,000 mark. Nifty settles below 18,350 points. And gold slips below 60,000 rupees per 10-gram level for June contracts at MCX. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल दिया कि भारत विश्व की प्रतिभा की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तेजी से उभरता हुआ देश है। घरेलू बाजार सूचकांक लगभग स्थिर रहे। सेंसेक्स 62,000 के करीब और निफ्टी 18,350 के करीब हुए बंद। और जून अनुबंध वाला सोना एमसीएक्स में 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Australia relationship is based on mutual trust and respect, and the real reason behind it is Indian diaspora. Addressing a community event at Kudos Bank Arena in Sydney, he said despite geographical distance and different lifestyles, yoga and cricket are something which have kept people of the two countries connected for ages. Mr. Modi asserted that India has the world's biggest talent factory and the International Monetary Fund considers the country as a bright spot in the global economy. He added that as per the World Bank, if there is any country which is withstanding global headwinds, it is India. The Prime Minister also said that India has made record exports even in the most challenging times. Listing out achievements of India in various sectors in the last 9 years, Prime Minister Modi highlighted that around 500 million bank accounts of people have been opened in the country and the whole ecosystem of the public delivery system has been transformed. He said today India is the fastest growing largest economy and it is also the number one smartphone data consumer in the world. Ms. Ramchandran, the Prime Minister Modi is of course in Australia right now as part of his 3-nation tour. Yes. How important is this visit, from the point of view of, because India and Australia geopolitically, economically, we are very close and we've been negotiating the extension of the FTA with Australia. So how important is Prime Minister Modi's visit? Well, it's certainly very important on many counts. First of all, on the strategic count, because now India, Australia, Japan and the US are part of a grouping known as the Quad. Although the Quad is not a military grouping, but it has joined hands on various issues relating to the Indo-Pacific, and one of them is on economic issues, also on trying to build together a semiconductor chain of factories which will utilize the expertise of all the 4 countries. So that is, of course, as far as the Quad is concerned. Secondly, India has, is negotiating in India-Australia free trade agreement. Now that is being looked forward to a great deal. There are, of course, certain sticking points, I think, related to wines and spirits. But that is always there in negotiating a free trade agreement. You will come across certain areas. But this is something that is likely to open up the Australian market for a lot of Indian products and give us an advantage as far as tariffs are concerned, because Australia is a big export market for us. So India, as you may be well aware, is not a part of the what they call the regional comprehensive economic partnership of the Southeast Asian region. We have decided not to be a part of it because it will not suit our interests. So therefore, we are entering into a series of bilateral free trade agreements
One has been concluded with the UAE, and others are being negotiated with European Union, UK, and of course Australia is very much on track. So then thirdly, of course, we have a relationship with Australia as far as as far as coal mining is concerned. We have interest in coal mines there. We import coal from Australia, and we could also be importing LNG. So there are many areas where we could be increasing our bilateral relationship. जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि विश्व की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री है भारत में, और यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ गया है, उसकी आप कितनी एक कंट्रीब्यूशन देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक टाइज मजबूत होने में? देखिए, आपको शायद पता नहीं मालूम है कि नहीं कि सबसे पहले हमारे देश से जो माइग्रेशन हुई थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, वो ज्यादातर एंग्लो इंडियंस की हुई थी शुरुआत में, और उसके बाद आजकल जो माइग्रेशन हो रही है, इमिग्रेशन, लोग वहां जा रहे हैं, 2-3 सेक्टर्स में जा रहे हैं. एक तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, तो वहां मेलबर्न, सिडनी वगैरह में स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं, और दूसरा आईटी क्षेत्र में लोग जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए और जो स्किल्ड हो गए हैं, मतलब आईटी प्रोफेशनल्स वहां पर जाके उनकी नौकरियां हो रही है, मतलब वहां नौकरी मिल रही है उनको आईटी क्षेत्र में. और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि उनके देश में स्किल्ड प्रोफेशनल्स आए, और हमारे देश से ज्यादातर जो लोग जा रहे हैं वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही हैं. आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एक वहां पर एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस काउंसिल है. वहां पर उनके जो हेड पहले थे वो उस वक्त कुछ साल पहले जब मैं गई थी, शायद 10-15 साल पहले, वहां पर वो एक एंग्लो इंडियन थे. वो बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी के चेयरमैन रहे थे, और वो उसके हेड थे. तो जो एंग्लो इंडियंस गए हैं, वो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. वहां गए तो हैं, पर अब वो चाहते हैं कि वापस इंडिया आए. वो शायद उस वक्त उनके माँ बाप इंडिया से चले गए, लेकिन अब ये बच्चे अपनी टाइज बढ़ाना चाहते हैं. तो जो भी उनको मौका मिलता है, जैसे कोई भी कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट से, वो वापस इंडिया आना चाहते हैं. तो ये अगर आप देखें तो पूरे विश्व भर में डायस्पोरा जो है वो इंडिया के साथ लिंक मेंटेन करना चाहता है. तो अभी जो प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी स्पीच की है डायस्पोरा से, और वहां जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि वो भारत के साथ अपने जो संबंध हैं वो कायम रखना चाहते हैं. और मैं फिर से यही कहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि टैलेंट फैक्ट्री, ये तो हम नकार नहीं सकते, ये बात तो ठीक है. हमारे देश में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो काफी देशों में चले गए हैं, और वहां पर प्रोडक्टिवली जिस देश में गए हैं वहां काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो बात कही उसको भी वहां पर दोहराया. उन्होंने कहा कि वो भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानते हैं पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में. उन्होंने हमारी उपलब्धियां भी गिनाई, जो हमारा डिजिटाइजेशन बढ़ा है, बैंक अकाउंट्स बढ़े हैं, पब्लिक डिलीवरी का इकोसिस्टम बढ़ा है. कैसे देखती हैं आप भारत की अभी जो स्थिति है, जो चेंज हुआ है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 3-4 सालों में, जो संकट आए उनसे जूझने की जो हमने क्षमता दिखाई, पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं भारत के लिए बदलते हुए? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि IMF ने कहा ही है कि इंडिया एक मतलब उभरता, समझ लीजिए, एक सितारा है या ब्राइट स्पॉट है दुनिया भर में. क्योंकि एक्सटर्नल हेडविंड्स जो कहा जाता है, एक्सटर्नल हेडविंड्स माने जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके असर सारे मतलब पूरे दुनिया में सब देशों के ऊपर असर हुआ है. हमारे देश के ऊपर भी काफी असर पड़ा है. हमारे देश में भी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की जो दर है बढ़ गई है. हमारे देश में भी सेंट्रल बैंक ने अपने रेट हाइक्स किए हैं. लेकिन
एक फर्क है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन की दर है अब उसके ऊपर काबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर उन्होंने काबू पा लिया, कंटेन किया है। और अब जो लेटेस्ट डेटा आया है कि ये मतलब 5% से नीचे आ गया है, तो इन्फ्लेशन हमारे देश में कंट्रोल हो गया है। बाकी के देशों में अगर आप देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी वहां बड़ी मुश्किल से अभी भी वो जूझ रहे हैं इन हालातों से, जो तेल के दाम बढ़ गए हैं और जो गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो खाद्य पदार्थों के जो दाम बढ़ गए हैं, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज कई देशों में हुई है। लेकिन हमारे देश में अभी मैंने इन्फ्लेशन की बात की, अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स आउटपुट हमारे देश में कोविड के जमाने में भी पॉजिटिव ग्रोथ ये हमारी कृषि क्षेत्र में चल रहा था, 4% की दर पे तब भी चल रहा था। और अभी भी हमारा जो फूड ग्रेन्स आउटपुट है वो अभी भी जारी है और हमें इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और हमारी ये स्थिति है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फूड ग्रेन्स। तो कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज हमारी जो स्थिति है अब काफी सारे देशों में उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं बहुत कम हो गए हैं। अब इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो 2023-24 की जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ होगी शायद 6 या 6.5% होगी और उस हिसाब से वो हमारा देश सबसे तेज गति से जीडीपी की ग्रोथ हमारे देश में होगी इन दी एंटायर वर्ल्ड। तो इस हिसाब से अगर आप देखें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, नॉट ओनली ब्राइट स्पॉट, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो एंड वी हैव मैनेज्ड टू overcome all the problems which are being faced by other countries also, but we have managed to overcome them and face these in a better way. इनफैक्ट जो आप कह रही हैं उसी से कुछ कहें कि जुड़ी हुई सी है हमारी अगली स्टोरी। श्रीलंका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में कमी आई है। श्रीलंका के सांख्यिकी विभाग के अनुसार अप्रैल में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक आधार पर 33.6% रही, जो इससे पिछले महीने 49.2% थी। मुद्रास्फीति पिछले साल सितंबर में 73% के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट में आ गया था। श्रीलंका 7 दशकों से अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। क्या कहेंगी आप सुषमा जी, जो हम फिगर्स देख रहे हैं, हाई डबल फिगर्स इन्फ्लेशन की हमारे एक पड़ोसी देश में, जैसा आपने कहा कि हमने कंपैरेटिवली अपनी इकोनॉमी को बहुत स्टेबल रखा है सरकार ने विद गुड मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ग्रोथ मैनेजमेंट। अगर हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका पर नजर डालें, जो एक हमारा पार्टनर कंट्री भी है, जिसकी हम मदद भी कर रहे हैं, और कैसे देखती हैं आप इस स्थिति को? क्यों उसके मूल कारण क्या है और आगे कैसे स्थिति संभलती हुई, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो आर्थिक जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो बड़े रैशनल तरीके से हम इनको फॉलो करते हैं और बड़े प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। अगर आपको याद होगा कि कोविड के टाइम में जब काफी सारे देशों ने ये रिलीफ पैकेजेस उन्होंने तय किए थे और हमारे देश में जितना रिलीफ पैकेज हमने किया ये छोटे उद्योगों के लिए और मध्यम उद्योगों के लिए, उस वक्त कुछ लोगों ने, और मुझे भी यही लगा कि हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, हमें ज्यादा करना चाहिए, लेकिन अब हमने उस वक्त उतना किया जितनी हमारी क्षमता थी। लेकिन हमने जो प्रूडेंस उस वक्त दिखाई थी कि बहुत अपने मतलब कटिंग, जो कहते हैं ना, यू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितना हमारे पास पैसा था उस हिसाब से हमने
मदद की थी अपने देश में, और हमने और भी चीजें की थी, जैसे मुफ्त में फूड ग्रेन्स दी थी लोगों को, बहुत सारी चीजें दी थी। लेकिन जो हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी वो थोड़ा सा हमने मेजर्ड तरीके से की थी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारी जो प्रूडेंट रैशनल पॉलिसीज हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें श्रीलंका में और बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, या अगर आप बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, उनकी जो पॉलिसीज हैं इतनी प्रूडेंट नहीं रही हैं। श्रीलंका ने कुछ पॉलिसीज ऐसे अपनाई थी कुछ साल पहले। उन्होंने अपने जो उनके पहले इससे पहले जो उनके राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्सा, उन्होंने टैक्सेस कम की थी। टैक्सेस कम करने से उनका रेवेन्यू इनफ्लो कम हो गया था। फिर उन्होंने एकदम से ये तय किया कि सारे देश में जो कृषि के क्षेत्र में सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो आपको फेज्ड तरीके से करना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो पहले ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे थे वो बिल्कुल हटा दिए गए थे। उसका नतीजा ये था कि जो चावल का उत्पादन था, जो वहाँ स्टेपल उनकी डाइट है, वो कम हो गई। फिर उनको आयात करना पड़ा चावल के लिए। और जो चाय जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है उनके लिए, उसकी उत्पादन कम हो गई। तो बाकी एक और वजह थी जो श्रीलंका की सरकार ने उस वक्त चीन का जो चीन ने उनको कहा कि हम आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में उन्होंने काफी पैसा खर्च किया, लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं हुआ और उनके ऊपर काफी सारा सरकार के ऊपर काफी सारा कर्ज आ गया। तो ये सारी जो पॉलिसीज थी उनकी मिसगाइडेड पॉलिसीज, जो बड़ी, जैसे मैंने कहा, इन कॉन्ट्रास्ट हमारे देश में जो प्रूडेंट रैशनल पॉलिसीज हम अपनाते हैं उसका असर तो दिखाई दे रहा है अब। सुषमा जी, इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं बाजारों की ओर। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज मामूली बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 62,000 के करीब और निफ्टी 18,350 के आसपास रहे। दोनों सूचकांकों में ये मामूली बढ़त वैश्विक शेयर बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 18 अंक बढ़कर 61,982 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34 अंकों की तेजी से 18,348 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.43% के फायदे में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.11% की बढ़त दर्ज हुई। The key domestic indices today ended with marginal gains. Sensex at the Bombay Stock Exchange closed near the 60,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled below the 18,350 level. Both indices rose amid mixed cues from global share markets. The Sensex gained 18 points to finish at 61,982. The Nifty appreciated 34 points to end at 18,348. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.43% and the small-cap index was up by 0.11%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 14 firms appreciated while 16 declined. Among the top gainers, Bajaj Finserv climbed 1.8%, while IndusInd Bank and Tata Motors both jumped 1.2% each. On the other hand, Tech Mahindra declined 1.2%, while Titan and HCL both fell 1.1% each. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged gains while 6 witnessed losses. Utilities sector climbed 1.4% and the power sector jumped 1.2%. Oil and gas and commodities sectors rose 0.9% each. On the other side, capital goods fell 0.6% and consumer durables slipped 0.4%. The overall market breadth was negative as shares of 1,707 companies rose, while 1,813 companies declined. A total of 104 shares remained unchanged. Sushma ji, technically a third day when the markets ended in green, but we saw that the markets ended almost flat today. How much of it is due to what is happening around the world, specifically in the US? Yes, I think largely this
this, I would say, nervousness of the market, although there has been a rally for the last 2 days, and today also, of course, there was a rally, but the market ended flat. I think there's a nervousness in the market, obviously, over what is happening in the United States. In the U.S., as you must have discussed, I'm sure, in the program in the last few days, is that there is a debt ceiling fixed for the U.S. government, and any increase over the debt ceiling or any increase in the requirement of borrowings by the U.S. government has to be approved by the U.S. Congress. Now at the current situation, the debt ceiling will be the deadline for increasing the debt ceiling is June 1, and no agreement has been made by the government, which is led by the Democratic, which is controlled by the Democratic Party and the President Joe Biden, who's from the Democratic Party, and the Republican Party, which is in control of a large of the legislature. So they have to come to an agreement on raising the debt ceiling. So this has to be approved by the U.S. Congress. Now, what are the problems in coming to the agreement? The Republican Party wants to curtail the spending of the government for the future, and they say that we will extend the debt ceiling, but you have to make a commitment that you will curtail your spending, and you will curtail your spending in the areas that we have specified to you. On the other hand, the U.S. government is saying that no, you have to approve the higher debt ceiling without any conditionalities, and it has. So this is the problem that is being reached. It is obviously a very political. It's more a political issue than an economic issue, because over the years the U.S. Congress has raised the debt ceiling, many times over the years, and this is something that is expected and natural. Now, if the debt ceiling is not raised on June 1, then what happens? The U.S. government will not be able to pay salaries to its workers. It will not be able to pay out certain federal subsidies that are given to many of their welfare programs, and it may not be able to repay debt. That is the interest on the debt that is accumulated. This in turn, these factors. Now, this is also likely to be a short-term issue. Definitely, the debt ceiling will be increased, even if the Republicans and Democrats reach some kind of agreement late. But the impact will be on markets globally, because it will show that the financial status of the U.S. government is unstable, and that the dollar, which is the most important currency of the world, would also be affected. So this is the nervousness that we see, probably not just in our markets, but in markets around the world. The European markets have also, been rather subdued, as well as Asian markets. Yeah, so in a way, what they say, that when the U.S. sneezes, the rest of the world catches cold, which is what seems to be happening here. But like you said, this has happened. The debt ceiling has been, this issue has been resolved almost at the last moment in years past. इनफैक्ट पिछले एक दशक में हमने 3 बार ऐसा देखा है, इसी तरह की नर्वसनेस, बट लास्ट मिनट पे रेजोल्यूशन हो गया. लेट्स मूव ऑन. आशा करें कि वही इस बार भी होगा. और अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 80 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 103.51 पर था. और रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अन्य एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई, और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की वृद्धि रही, लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.6% लुढ़क गया. हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई, और जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था. लंदन के फुटसी में 0.3% की तेजी थी, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.3% की गिरावट पर था, और फ्रांस का कैक 1% के नुकसान में था.
Moving on to the U.S. market, major U.S. stocks closed mixed yesterday. The Nasdaq climbed, helped by gains in Alphabet and Meta platforms, while the S&P 500 ended flat and the Dow Jones ended with loss as investors refrained from big bets ahead of a fresh round of talks about raising the U.S. debt ceiling. The Nasdaq Composite Index gained 0.5%, while the Dow Jones Industrial Average fell 0.4%. Sushma ji, we just discussed in detail about this, the U.S. debt ceiling issue. But the other thing, do you think the other factor that the U.S. Fed's May monetary policy meeting minutes, which is the FOMC minutes, which are about to be released tomorrow, that could also be a factor why the U.S. markets were, mixed yesterday? Yes, definitely that is a factor because people are still worried, although the U.S. Fed has indicated that it is going to take a pause, but it could once again be raising rates. So this is all a combination of factors, but definitely the fact is, of course, the Fed has made it very clear that they're not going to stop right now in raising rates, and their target is, of course, 2% inflation. So they're going to continue till they achieve their target. So this nervousness is, of course, due to that too. Moving on to commodities, oil today rose more than 1% amid support from a tighter market outlook due to a seasonal rise in demand and supply cuts from OPEC plus producers. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.90 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $73 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने में 365 रुपए की गिरावट आई और ये 59,875 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। ताजा समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1,400 रुपए की भारी गिरावट से 71,330 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,980.90 प्रति आउंस पर था और चांदी भी मंदी के साथ $23.30 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगे आप, अगर हम तेल की बात करें तो सप्लाई कट्स जो ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स ने किए वो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुके हैं, उसके बावजूद जो हम लेवल्स देख रहे हैं सब $80 लेवल, क्या ये भारत के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है? इस वक्त तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन आगे दिनों में लगता है कि ये दाम बढ़ेंगे क्योंकि सारे फैक्टर्स ये है, चाहे चीन की डिमांड बढ़ रही है और आउटपुट कम हो रहा है, तो आगे देखना है कि कैसे रहेगा मार्केट। और जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं हमारे रिटेल प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के, उसमें क्या आप कोई संशोधन देखती हैं? नहीं, इस वक्त तो नहीं होगा क्योंकि अभी जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने जब दाम बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने दाम बढ़ाए नहीं थे, तो उनके जो लॉसेस हैं अभी वो उनको रिकवर करेंगे। अगर काफी दिनों तक ये लो प्राइसेस चलते रहे तो हाँ जरूर फिर पंप प्राइसेस हमारे कम हो सकते हैं। Sushma ji, coming to the gold prices, from record highs, we are now seeing gold prices are falling down. Do you think it is also, the fact that maybe, and as always, the U.S. debt ceiling crisis will get resolved? That could also be the reason that, the gold prices are not sustaining at the levels that they were at? Yes, because the dollar is getting strengthened just now. Dollar is becoming very strong, and therefore gold is kind of retreating as a safe haven asset. बट आपको लगता है कि अगर आगे चलकर और अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो एज अ सेफ हेवन सोने का आकर्षण पैदा हो सकता है? अब दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस ऑन June 1. आई थिंक दैट वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, देन ओनली वी विल हैव अ बेटर आइडिया। सो आपको लगता है अभी सोने में निवेश कोई वेट एंड वॉच की सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और विभिन्न आर्थिक विषयों पर आपने हमें विस्तृत जानकारी दी। थैंक यू सो मच। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts that India is the world's biggest talent factory and bright spot in the global economy. Domestic indices close almost flat. Sensex finishes near the 62,000 mark. Nifty settles below 18,350 points. And gold slips below 60,000 rupees per 10-gram level for June contracts at the MCX. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. with yet another edition and more news from the world of economics, business and stock market. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Market Mantra.